Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. What is your name, beta? Madhu. Okay, Madhu. So let's start our today's class because so less participant was coming. So let's start our today's class. First of all, you mute yourself. So chapter Okay, ma'am. number 13. Chapter number 13, the Constitution, Government System and their Social Concern. Okay, this is our new chapter of social science. This is related to political science. Okay, political science से related है chapter number 13. The Constitution, Government System and their Social Concern. Now, Madhu, please read this paragraph, first paragraph. Madhu Kumari. Yes, ma'am. Start beta reading. Start reading. Yes, ma'am. Afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Start reading, Madhu. Madhu, start reading. Yes, ma'am. From here, in the last chapter. Start reading. मैम नेट धीरे चल रहा है, अच्छे से आ नहीं रहा आवाज. Okay, anyway, मैं read कर देती हूँ. Now, in the last chapter, we learned about the Okay, ma'am. Indian Constitution. We tried to build our understanding of the historical constant in which it was drafted and the drafting process itself, the series of debates in the Constituent Assembly, and the value and principles articulate in the preamble that form the basic of the Constitution. जो लास्ट चैप्टर था हम लोग का चैप्टर नंबर 12, उसमें जो था क्या था चैप्टर नंबर 12 में द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया था कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है. ठीक है, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल को हटा करके जो हम अपना इंडियन खुद अपना रूल्स रेगुलेशन अपना कॉन्स्टिट्यूट खुद बनाई थी. ठीक है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूट किसने बनाया था? बताओ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था और कब हुआ था? एनीबडी? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स रेगुलेशन थे, पॉलिसीज थे, वो सारे बनाए थे. देन एक्ट, जितने भी एक्ट थे उसमें, है ना, वही बनाए थे. देन आफ्टर कौन सी ईयर में बना था और वो इम्प्लीमेंट कौन सी ईयर में हुआ? कौन सी ईयर में वो बना था और कौन सी ईयर में इम्प्लीमेंट हुआ? हमारे इंडिया में लागू कब हुआ? 1947 को हमारा इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ था. ठीक है, 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और वो इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को. ओके, हमेशा याद रखोगे ये चीज. सो ये जो है लास्ट चैप्टर से रिलेटेड है. द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट सिस्टम एंड द सोशल कंसर्न जो है, इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना, देन गवर्नमेंट सिस्टम क्या थे यहाँ के, क्या है यहाँ के, और साथ ही साथ यहाँ का सोशल कंसर्न, मतलब हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो पॉलिटिक्स है, ये किस तरीके से चलते हैं, ये इस चैप्टर में आप जान पाओगे. So in this chapter, we shall learn about the structure of political organization, the opportunity and the constitution provides for social changes and the way in which the constitution is evolving and developing. किस तरह से यहाँ पे जो है social changes होते रहे हैं day to day, मतलब जिसके according जो law pass होते थे, law मतलब होता है कानून,
है ना, किस तरीके से कानून पास होते थे, देन आफ्टर किस तरीके से डेवलप किया गया, इसमें और कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए, ये सारा चीज आपको इसमें चैप्टर में पता चलेगा। नाउ 13.1 द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एनीबडी वांट टू रीड? कोई रीड करना चाहता है मैम यहाँ मैं से? पढ़ूं? हाँ, ये स्टार्ट रीडिंग बेटा। व्हाट इज योर नेम बेटा? मैम अंशिका। अंशिका, स्टार्ट बेटा। The structure of political institution in the constitution. Decentralization of power. When power is centralized, it is beyond the reach of the common people, as a result of which their needs and aspirations are not given priority. Democracy must be decentralized to become strong. The people should have the power to take decisions through the representatives they elect at the community, village, town, district, and state levels. Gandhiji visualized more power being given to the village panchayats in his concept of Swaraj or self-rule. रूल। One of the ओके debates. ओके ओके, वेट वेट वेट, ओके थोड़ा सा वेट करो, ये पूरा पैराग्राफ आप ही पढ़ना। ओके मेरे को ये पैराग्राफ मेक यू अंडरस्टैंड, देन आफ्टर यू विल स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके सो Yes, ma'am. सबसे पहला टॉपिक जो हेडिंग है वो क्या है कि किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो किस तरीके से जो स्ट्रक्चर किया गया, बनाया गया। तो सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर को डिसेंट्रलाइज्ड किया गया। सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे बना पार्लियामेंट में, वो हमारा सेंट्रलाइज था, ठीक है, वो सेंट्रलाइज था, फिर उसको डिसेंट्रलाइज्ड किया गया, मतलब हर एक स्टेट में खुद की गवर्नमेंट जो है आप बना सकते हैं। देन गवर्नमेंट फिर जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो भी डिसेंट्रलाइज कर दी, कि जो भी लोकल अथॉरिटी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, लोकल कोर्ट वगैरह हैं, ठीक है, वो भी डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। तो डिसेंट्रलाइज ऑफ द पावर का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से जो है जो सेंट्रलाइज्ड है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। तो व्हेन पावर इज सेंट्रलाइज्ड, जब पावर सेंट्रलाइज में था, इट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द कॉमन पीपल, बहुत लोग जो है वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो कॉमन पीपल जो है उस चीज के बारे में नहीं जान पाते थे, जो कि सेंट्रलाइजेशन में जो भी डिसीजन पावर लिया जाता था गरीबों के लिए या फिर बिजनेस रूल्स के लिए, कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता था तो कॉमन मैन को इसका पता नहीं चल पाता, जिसके कारण जो है, जस्ट वेट, फोन आ गया था, जिसके कारण जो है अपना जो गवर्नमेंट है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गई, मतलब यहाँ पे दूसरे स्टेट लोग को उसकी खुद की अथॉरिटी दी गई कि आप लोग जो है अपना स्टेट अपने तरीके से चलाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे सेंट्रलाइज विजुअलाइज्ड है, मतलब कुछ सेंट्रलाइज विजुअलाइज्ड का मतलब होता है कि जो अपना पार्लियामेंट है वो हमारे स्टेट, जितने भी स्टेट है ना, वहाँ के पार्लियामेंट में थोड़ा बहुत विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं, ठीक है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी वगैरह देखते हैं। So democracy must be centralized to be strong. The people should have a power to take decision through the representative, ताकि यहाँ के लोगों को पावर मिल सके कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुने, और इतना डिसीजन पावर लेने का जो है पावर उनमें होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी पावर में है। ओके तो elect at the community, village, towns, district and state level, Gandhi ji visualized more power being given to the village panchayat। यहाँ तक विलेज पंचायत लोगों को भी उनको पावर दिया गया कि आप अपना कंसेप्ट जो है खुद ही रूल्स रेगुलेशन खुद ही फॉलो करो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्वराज्य या फिर सेल्फ रूल, मतलब खुद का बनाया हुआ रूल। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ रीड बेटा अंशिका। Yes, ma'am. One of the debates during the time the constitution was being drafted was about whether the states should be given more power, with the central government only being responsible for matters such as defense and foreign policy. The Constituent Assembly decided that India should have a strong central government to protect the unity and integrity of the country and usher in social change. It also gave the states the power to decide on a wide range of subjects. At the time of independence, India was visualized as a union or amalgamation of amalgamation
amalgamation of states. Hence, power was distributed at two levels, the union or central level and the state level. At both levels, the representatives elected by the people were given the right to take decision. In 1992, the 73rd Amendment of the Constitution decentralized power to a third level, the village panchayat. ओके स्टॉप। ओके नाउ यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये बहुत सारा डिबेट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में मींस नेताओं लोग के बीच बहुत सारा डिबेट होने के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिसीजन लिया गया कि हर एक स्टेट को अपना खुद का पावर जो होना चाहिए, ओके, विथ अ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो है उनके और भी ज्यादा पावर बढ़ने चाहिए। तो सच रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर सच डिफेंस एंड द फॉरेन पॉलिसी, और कुछ जो है डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंजेस जो है उनमें करना चाहिए ताकि बाहर के लोग जो है हमारे कंट्री में आके फिर से राज ना करने लगे। तो इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लिए गए। देन आफ्टर डिफेंस पॉलिसी का मतलब होता है जहाँ अपनी सुरक्षा, अपनी सिक्योरिटी, डिफेंस के ऊपर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिसी जो है यहाँ पर बनाई गई। The Constitution Assembly decided that the Indian should be a strong central government to protect the unity and integrity. एक strong decision लेने के बाद Constitution Assembly ये decide करती है कि central government जो है हर एक unity, हर एक integrity को protect करने के लिए सक्षम हो, ठीक है, और social changes और टाइम पे जो है social changes जो है वो बदलाव आते रहे ताकि लोग जो है जो हमारी जो कंट्री थी ना वो बहुत ही पुराने जमाने के लोग थे और वो जो है बहुत ही पुराना सोच रखते थे, ठीक है। तो सोशल चेंजेस उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप जानते होंगे अमेरिका के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे कि अमेरिका बहुत सालों पहले ही जो है जात पात, ठीक है, उसके बाद फिर मैन और वुमेन के बीच जो इनइक्वालिटी थी वो सारा चीज बहुत पहले उन्होंने मानना छोड़ दिया, ठीक है। मीन्स वहां पर वुमेन और मैन को एक तरीके से ट्रीट किया जाता था मीन्स उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी, ऐसा नहीं और उनको नॉलेज भी दिया जाता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि लड़की है तो घर से बाहर नहीं निकल सकती है, पढ़ नहीं सकती है, काम नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में पहले के जमाने में ऐसा था, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उस टाइम पे जो है पहले की जो लड़कियां थी पुरानी जो घर की सिर्फ घर को ही देखती थी, ठीक है, घर पे खाना बनाती थी, घर पे रखती थी, तो उनके पास कोई भी अर्निंग कैपेसिटी या फिर अर्निंग मेथड नहीं था, क्योंकि उनको बोला जाता था कि आप घर पे रहो और घर ही के सारे काम देख रेख करो, ठीक है, आप घर के बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती। तो ये सारे जो पुराने ख्यालात के जो लोग थे, ठीक है, मम्मी उनका छोटू आएगा। यस व्हाट हैपन। तो पुराने जमाने के जो लोग थे वो अभी भी पुराने जमाने के लोग ऐसा थॉट रखते थे, इसीलिए उन्होंने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिसाइड करी कि किस तरीके से हम अपना सोशल चेंजेस जो है वो चेंज करते रहना चाहिए, ओके। जिसके कारण कुछ अमेंडमेंट किया गया, मतलब कुछ और भी चीजें जोड़ी गई हैं, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, देन आफ्टर कल्चर को लेके, देन आफ्टर स्टेट को लेके, जगह को लेके, एरिया वाइज भी लोग बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट हो गए थे उस टाइम पे कि ये हमारा जगह है तो सिर्फ हमारे लोग ही रहेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे इंडिया में आप देख सकते हो गुजरात में गुजराती रहते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी रहते हैं, केरल साइड में जाओगे तो आपको सारे साउथ साइड में पूरे साउथ इंडियन लोग रहते हैं, देन आप दिल्ली साइड में जाओगे तो वहाँ पे सारे पंजाबी लोग मिलेंगे, ओके। तो ये सारी जो चीजें हो रही है, ये सारे जो कोलकाता में बंगाली लोग रहते हैं, तो लोग जो है एरिया वाइज भी अपने आप को डिस्क्रिमिनेट करना चालू कर दिए थे, जो कि बहुत ही गलत चीज था, वो बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहा था। बट उस टाइम पे वो सारा चीज सेटलमेंट हो गई थी बिकॉज ब्रिटिशर्स ने ही ये सारा सेटलमेंट करके गए थे, ठीक है। देन क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज विजुअलाइज्ड ऑन एन यूनियन और अमेलगमेशन टू स्टेट। उन्होंने ये सोचा कि यूनियन इंडिया को देखते हुए उन्होंने ये सोचा कि एक यूनियन और सारे स्टेट को अमेलगमेट किया जाए। हेंस पावर वाज डिस्ट्रीब्यूट टू लेवल, दो पावर, इन पावरों को दो लेवल पे बांटा जाए, एक है यूनियन मतलब सेंट्रल लेवल और एक है आपका स्टेट लेवल, ठीक है, दो लेवल पे इस चीज को बांटा गया। एट बोथ द लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, और दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो इलेक्टेड बाय द पीपल ही होंगे। सो वेयर गिवन द राइट टू टेक डिसीजन, और ये
वो पीपल खुद अपना डिसीजन खुद लेंगे कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब समझ रहे हो ना, कि हमारा जो नेता कौन बनेगा, ठीक है। और वो उनको हम ही चुनते हैं, तो वो सेंट्रलाइज्ड हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, हम ही चुनते हैं कि हमको किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना है या फिर नेता बनाना है। तो इन 1992 द 73 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिसेंट्रलाइज्ड पावर टू अ थर्ड लेवल, द विलेज पंचायत। थर्ड लेवल पे कुछ जो है 1992 में एक और अमेंडमेंट किया गया। पहले तो दो लेवल पे चल रहा था, पहला लेवल था कि सेंट्रल या फिर यूनियन, और दूसरा था जो है स्टेट लेवल। लेकिन उसके बाद थर्ड लेवल भी आ गया जो कि विलेज पंचायत जिसको बोलते हैं, मतलब विलेज में ही 5 जन रहेंगे, 5 मेन लीडर्स रहेंगे जो कि वहां का डिसीजन वो खुद ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। पहले सेंटर में होता था, फिर स्टेट में हुआ, फिर स्टेट से क्या हो गया, विलेजेस में आ गया। तो ये हर एक स्टेट में ही ऐसा हो गया, ठीक है, हमारे कंट्री में हर एक स्टेट में ऐसा हो गया। देन हु विल रीड सेपरेशन ऑफ पावर? सेपरेशन ऑफ पावर, हु विल रीड? मैम मैं करूं? हाँ, रिया स्टार्ट यस बेटा। मैम। Separation of power. The state or government has three kinds of power Three to enact. kinds, not kids, beta. That is a kinds. Sorry, ma'am. Kinds of power to enact laws, employment them, and dispenses justice according to the law, but concentrating all these three powers in a single body could lead to author, Authorian. author, authoritarian rules. Authorian. Authoritarian rule. Hence, this power should reside in separate and independent organizations. Organization. This is what separations of power means. As you learned in the previous class, such separation was a major objective of most democratic revolution. So most modern governments have three arms of branches: the legis, legislature, Legislature. which enact Legislature. हाँ आगे बोलो। leg, laws and Legislature. legislature which enact Enact laws and enact policies. laws and formulated policies. The executive which implements these laws and the Implements. implement these laws Implements and these the laws. Judiciary. judiciary which dispenses justice in accordance with these laws. The principle of Okay, stop. separation Okay, of stop, stop, power. stop, 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 stop. Yes, Wait, ma'am. wait, wait. ठीक है, यहाँ तक मेरे को समझा लेने दो, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना। ओके, नाउ सेपरेशन ऑफ पावर। द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट हैज थ्री काइंड, देयर आर थ्री काइंड, तीन चीजों में इसको बांटा गया। स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो पावर है उनको थ्री चीजों में बांटा गया। पहला है टू इनैक्ट लॉ, सबसे पहले जो है लॉ को बनाना है। जो लॉ को बनाते थे उसको अपन क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। देन इम्प्लीमेंट देम, उसको देन लागू कराना, जिसको हम लागू कराते हैं उसको हम बोलते हैं द एग्जीक्यूटिव। ओके, देन आफ्टर डिपेंसिव जस्टिस अकॉर्डिंग टू द लॉ, ताकि उसका जस्टिस हो सके, मतलब सही जगह पे जाके हमको जजमेंटल मतलब जज किया जाए। जो जस्टिस होता है ना, जस्टिस कहाँ किया जाता है, हमारे कोर्ट में, है ना। तो वो उसको अपन जुडिशरी बोलते हैं। ओके, जहां पर लॉ बनता है उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिन लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है मतलब लागू किया जाता है, उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। और थर्ड जो है जिसको जस्टिस किया जाए कि हाँ ये लॉ सही है कि नहीं है, कानून के मुताबिक आप गलत है, कौन इंसान गलत है, जो कोर्ट में फैसला किया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जुडिशियरी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे बट कॉन्सेंट्रेट ऑल दिस थ्री पावर इन द सिंगल बॉडी, और एक सिंगल बॉडी ही इसको जो है बनाता है, लीड टू अथॉरियन रूल। हेंस दिस पावर should reside the separate and independent organization. This is what separation of power means. इसी का मतलब जो होता है कि किस तरीके से हम पावर को सेपरेट किए हैं। As we learned the previous class, such separation is major objective of most democratic revolution.
So most modern government have three arms, तीन arms होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक है legislature, एक है the executive और एक है judiciary. तो फिर मुझे ये बताओ legislature का क्या काम है? Tell me, anybody? Tell me कि legislature का क्या काम होता है? What is the work of legislature? वहां पर क्या किया जाता है? Tell me बेटा. मैंने अभी जस्ट बताया कि यहाँ पर लेजिस्लेचर को क्या किया जाता है. लेजिस्लेचर में क्या किया जाता है? यहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है, कानून बनाए जाते हैं, पॉलिसी बनाए जाते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा पॉलिसी जो हमारे इंडिया में, कौन कौन से कानून जो हमारे इंडिया में बनाए गए हैं, ये कहाँ बनते हैं? लेजिस्लेचर में बनते हैं. देन क्या होता है उसके बाद? सेकंड क्या है? थर्ड आर्म क्या है? सेकंड आर्म क्या है हमारा? सेकंड आर्म क्या है हमारा, बताओ? द एग्जीक्यूटिव. द एग्जीक्यूटिव में क्या किया जाता है कि हम कानून को किस तरीके से लागू कराए, ठीक है, मतलब कितने लोगों तक हमारा कानून पहुंचना चाहिए, ये जो है एक एग्जीक्यूटिव का काम रहता है, ठीक है, कि किस तरीके से हमको लोगों को बताना है कि क्या क्या कानून हमारे देश में चल रहा है. उस टाइम पे अगर कोई भी झगड़े वगैरह होते हैं तो आपको जो उस टाइम पे उसको उसी कानून के अकॉर्डिंग जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हो. तो ये कहाँ होता है? जो भी जजमेंट होता है वो कहाँ होता है? जस्टिस कहाँ मिलता है? हमको कोर्ट में मिलता है. तो उस बॉडी को क्या बोला जाता है? द जुडिशियरी. ठीक है, तो थ्री आर्म्स है, एक है लेजिस्लेचर, एक है द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी. ओके, अंडरस्टैंड? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट रीड नेक्स्ट पैराग्राफ. The principle of separation of power ensure that the three branches of government, legislature, executive, and लेजिस्लेचर, executive, and judiciary are एंड जुडिशियरी. judiciary are independent, have their specific responsibilities, and don't interfere with or try to control each other. But this is not always possible in practice because their work depends on each other, so they have to cooperate and work together. That is why India adopted the principle of limited separation of powers. We have a parliamentary democracy in which the judiciary in Judiciary, independent judiciary in independent, but the legi legislature, legislature and executive depended on each other because the executive councils of ministers is itself a part of the legislature. Parliament, since the members of the council of ministers are also members of the parliament, the executive and the legislature and legislature are legislature are closely intertwined. intertwined. Okay, okay, stop. Now the principle of separation, जब power separate हुआ तो three अपना arm बना. सबसे पहले legislature, second executive and third is judiciary, and are independent, have their specific responsibility. इन तीनों की खुद की एक specific responsibility थी, and don't interfere with any try to control each other, ताकि वो एक दूसरे को कोई भी जो है इसमें इंटरफेयर ना कर सके, ना ही हमको दोबारा कोई कंट्रोल कर सके. बट दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल इन प्रैक्टिस. बट ये हमेशा पॉसिबली नहीं हो पाया बिकॉज देयर वर्क इज डिपेंड टू ईच अदर. ये हर एक जो काम जो बना है, जैसे अपन को लेजिस्लेचर बनता है जो पार्लियामेंट में बनता है, ओके, देन उसको एग्जीक्यूटिव हमारे लोगों में, देन आफ्टर जुडिशियरी जो जजमेंट होता है, एक दूसरे से सिंक है. अगर बोलोगे कि तीनों इंडिपेंडेंट है, नो, तीनों जो है जिसके कारण वी हैव अ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन विच द जुडिशरी इज डिपेंडेंट बट द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट ऑन ईच अदर बिकॉज द एग्जीक्यूटिव ऑफ काउंसिल मिनिस्टर itself a part of legislature parliament. Okay, मतलब ये एग्जीक्यूटिव में अगर आप देखा जाओगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं जो कि लोगों को किस तरीके से रूल्स और रेगुलेशन बताना, ये सारा किसका काम रहता है? मिनिस्टर का काम रहता है. So since the members of the council of ministers are also member of the parliament, the executive and legislature are closely intertwined.
जिसके कारण जो है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर जो एक दूसरे से बहुत ही रिलेट करता है, मतलब इंटर लोग दोनों लिंक में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? द यूनियन लेजिस्लेचर। हु विल रीड? योगिता, Yes, ma'am. साक्षी, योगिता रीड करो बेटा, द यूनियन लेजिस्लेचर। Yes, ma'am. Our union legislature is called the parliament. It is composed of the president and two houses, Lok Sabha and Raj Sabha. A special feature of the Indian constitution is that the executive council of ministers is a part of the parliament and is answerable to it. The parliament represents the will and supremacy of the people. It is the foundation of the country's political system and the voice of the nation. The parliament has representation from all classes of society and all regions of the country. It also has a system of reservation to ensure representation of the scheduled caste and tribes, but schedule caste and tribes, but the representation of women is much lower than what one would accept in a parliamentary democracy. This is a matter of national concern. That is why a bill to aimed amend amend the amend the constitution to reserve at least 33% of the seat in parliament for women has been under consideration for several years. ओके ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। देन क्या हो रहा है यहाँ पे? यूनियन लेजिस्लेचर। सबसे पहले हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, जिसको यूनियन लेजिस्लेचर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे सारे एग्जीक्यूटिव जितने भी लॉज जो और पॉलिसीज जो है फॉर्मुलेट यही किया जाता है, पार्लियामेंट में ही किया जाता है। आप देख रहे होगे पिक्चर में पार्लियामेंट, हमारे इंडिया का पार्लियामेंट है। ओके, सो यहाँ पर क्या बनाया जाता है? यहाँ पे टू टाइप के हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। A special feature of Indian Constitution is an executive council of the minister। सबसे हमारे इंडिया का मेन फीचर, स्पेशल फीचर जो ये है कि इस एग्जीक्यूटिव यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहते हैं वो एग्जीक्यूटिव में रहते हैं, इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो कि पार्लियामेंट के पार्ट होता है, जो कि आंसरेबल जो है कौन देता है? कोई भी जवाब, कोई भी सवाल होता है, इस जो भी जवाब होता है उसका सवाल सिर्फ मिनिस्टर ही दे सकते हैं, क्योंकि उनको जो है सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। लॉ अगर बन रही है तो लॉ का पता उनको होना चाहिए, तो इट शुड बी आंसरेबल टू इट। द पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द सुप्रीमेंसी ऑफ द पीपल, ठीक है, ताकि जो पार्लियामेंट है वो रिप्रेजेंट कर सके अपने पीपल लोग को, ठीक है। देन इट इज अ फाउंडेशन ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम एंड द वॉइस ऑफ द नेशन, ताकि पॉलिटिकल सिस्टम का जो हमारे कंट्री का जो फाउंडेशन है पॉलिटिकल सिस्टम, वो हर एक लोगों तक पहुंच सके। The parliament has representation from all the classes of society and all religion of the country. It also has a system of conservation is ensure representation and scheduled caste and tribes। जो कि ये पार्लियामेंट जिस तरह के रिप्रेजेंटेटिव ऑल क्लासेस और ऑल सोसाइटी के लिए है, और रिलीजन ऑफ द कंट्री सारे लोग के लिए, चाहे वो कोई भी क्लास के हो, चाहे किसी सोसाइटी के हो, चाहे किसी रिलीजन के हो, या किसी कंट्री मतलब हमारी कंट्री के हो। It also has a system of reservation and ensure representation of scheduled caste and scheduled tribes। और इनके लिए जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स लोग के लिए जो ST SC बोला जाता है, उन लोग के लिए कुछ रिजर्वेशन रखे गए। But the representation of women is much lower than what would to expect in the पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो किस तरीके से वुमेन जो है वहां पे अपने कंट्री में बहुत ही कम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो पार्टिसिपेंट करती थी, क्योंकि उनको उतना हक नहीं था, क्योंकि उनको राइट टू एजुकेशन नहीं था, राइट टू क्या बोलते हैं नॉलेज नहीं था, ऐसा कुछ भी उनको अधिकार नहीं था, जिसके कारण जो है वुमेन लोग को बहुत ही पीछे की और मतलब एक तरीके से मतलब बहुत ही पीछे, जैसे ST SC होते हैं ना, उसी तरीके से एक लेडी जो रहती है, मतलब एक वुमेन जो रहती है हमारी कंट्री की जो वुमेन है, वो बहुत ही
पीछे वर्ग में रह गई। दिस इज द मैटर ऑफ द नेशनल कंसर्न, दैट इज द वाई द बिल इज अमेंड। कुछ इसलिए बिल में जो है, कानून में जो है, कुछ और भी सारी चीजें ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये ऐड किया गया है कि 33% ऑफ द सीट ऑफ पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट में 33% सीट जो है वो वुमेन को मिलना चाहिए, वो भी हर साल। ओके, now in next turn your next page, page number 172, page number 172. Read the representative who are elected. Okay, don't be read, I will read. So the representative who are elected either directly or indirectly, जो भी representative होते थे या तो वो directly elected होते थे या तो indirectly elected होते थे. Present the problem of the people is parliament. पार्लियामेंट वेयर दे आर डिस्कस, जो भी प्रॉब्लम होता था उस टाइम पे वो पार्लियामेंट में जाके उसको डिस्कस किया करते थे। आप पार्लियामेंट देख रहे हो कि अंदर का जो सीन है, यहाँ पर आप देख रहे होगे, पिक्चर्स में देख रहे हो किस तरीके से जो है यहाँ पे लोग जो है फैले हुए हैं और अपना डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, आपने लोकसभा राज्यसभा का अगर कभी पार्लियामेंट आता है, एक न्यूज आता है, वहां पर देखते हो कितना ज्यादा चीखते चिल्लाता है। जो भी प्रॉब्लम होता है देश के हित पे, फॉर नॉट अगेंस्ट, ओके, फेवर ऑफ नेशन, फेवर फॉर द नेशन, जो भी डिसीजन उस टाइम पे लिए जाते हैं उस पार्लियामेंट में। ठीक है, द पार्लियामेंट ऑल्सो डिस्कस पॉलिसी मैटर एंड लॉ रिलेटेड टू द प्रपोजल एंड कैबिनेट प्रपोजल बिफोर अप्रूविंग देम. In addition, is discussed the performance for the ministers who are expected to answer all queries posed to them. In this way, the parliament play an important role keeping and watching of the government and controlling the authoritarian tendency that could lead the concentration of power of the government. Okay, तो यहाँ पर क्या बता रहा है? द पार्लियामेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में भी जाके सारा चीज डिस्कशन किया जाता था, जो भी पॉलिसी यहाँ पर बनता था, जो भी लॉस वगैरह बनते थे। ठीक है, और ये सारा चीज कैबिनेट प्रपोजल के थ्रू ही ये डिस्कशन चलता था। और इसमें एक और एडिशन होता था कि जो भी मिनिस्टर उस टाइम पे आंसर या क्वेश्चन करते हैं, उस टाइम पे जो है उस सवाल का समाधान जो बोलते हैं ना, वो निकाला जाता था उस टाइम पे। इन दिस वे द पार्लियामेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, उस टाइम पे पार्लियामेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। कीप द वॉचिंग ऑन द गवर्नमेंट एंड कंट्रोलिंग एन ऑथोरियन टेंडेंसी, जितने भी गवर्नमेंट रूल करती थी या कंट्रोल करती थी, उनकी ऑथोरियन को जो है हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती थी। सो दैट कुड लीड द कंसंट्रेशन पावर इन द गवर्नमेंट, इसी तरीके से जो है पावर, गवर्नमेंट का जो पावर है वो एक जगह पे टिका रहता था, मीन सेंट्रलाइज रहता था। आज भी अगर आप देखोगे कि किस तरीके से अगर हमारे इंडिया में, हमारे किसी भी स्टेट में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो पार्लियामेंट तक पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? क्योंकि पार्लियामेंट के भी कुछ जो लोग हैं हमारे स्टेट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ एग्जीक्यूटिव लोग रहते हैं जो कि हमारे मिनिस्टर्स वगैरह जो रहते हैं। ठीक है, तो लोकसभा एंड राज्यसभा में ऐसे लोग रहते हैं जो कि हमारे स्टेट से बिलोंग करते हैं और वो हमारे स्टेट का प्रॉब्लम जो है पार्लियामेंट तक पहुंचाती है। ठीक है, तो आज के लिए जो है हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। टुमारो वी विल स्टार्ट लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके Okay, ma'am. Yes, ma'am. okay, till now this class is over. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, welcome. Okay, welcome.